In this lecture, we are going to see how to calculate the fractal dimension. Now, fractal dimension is the measure of how complicated a self-similar figure is. मीन्स सेल्फ सिमिलर फिगर कितनी कॉम्प्लिकेटेड है वो निकालने के उसके मेजर निकालने के लिए वी यूज़ द सेल्फ सिमिलर और द फ्रैक्टल डायमेंशन. मीन्स इफ़ यू वांट back elimination of one characteristic is mandatory, and that is the same similar shapes. Okay, so broad categories of shapes are, first is the regular shape and second is the irregular shape. That is, to measure the fractal dimension the picture must be self similar. अगर fractal dimension हमें measure करना है तो figure must be self similar होनी चाहिए, then only we can measure the fractal dimension. So self similar regular shapes कौन से that is line, plane, cube, etc. These are the self similar regular shapes. And irregular shapes कौन से, that is mountain, cloud, etc. These trees, these are the irregular shapes. So dimension of regular shapes means to find out the dimension of regular shape and irregular shape we have to use somewhat different strategy. So that we are going to see. So dimension of regular shape, if the dimension is 1 means one line, then it will be like this. If dimension is 2, then it will be like this, and dimension is equals to 3, it will be like this. How this dimension gets calculated, that we have to find out. Okay, so we can divide this line, cube and square. ये जो line है, cube है और square है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. आफ्टर डिवाइडिंग इनटू द नंबर ऑफ पीसेस वी कैन गेट द सेम सिमिलर स्ट्रक्चर. अगर हम लोग इसे डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करते हैं तो वी गेट द सेल्फ सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है, बट हाउ मेनी सेल्फ सिमिलर इज दिस, दैट वी विल गेट आफ्टर दिस प्रोविजन. बट वो कितने सिमिलर है वो अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो प्रोसीजर हम लोग आगे यूज़ करेंगे उससे वो फाइंड आउट होगी. क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन द स्केलिंग फैक्टर. सो वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्केलिंग फैक्टर्स के ऊपर. सो by the scaling factor and dimension we will get that exact number of same object or self similar radius. तो किससे हमें मिलेगी सेल्फ सिमिलर ऑब्जेक्ट. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्केलिंग फैक्टर एंड द डायमेंशन. सो यूजिंग स्केलिंग फैक्टर एंड डायमेंशन विल गेट द नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट और सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? नाउ व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर? So first of all we can divide the object in n self similar pieces. Then how to get the original object from the size of these n pieces, that is nothing but the scaling factor. So scaling factor फिर इसके ऊपर से कैसे डिफाइन करेंगे. If you want to get the original object from any part of the self similar, then we have to scale the object using scaling factor. For example, when we divide the line into two equal pieces, and by using any one of these, if we want to recover line, then scaling factor will be 2. For example, scaling factor we represent it with the n. ठीक है, if we divide this line into two pieces, so it will be like this, right? Now if we divide this square, अगर हम लोग ये स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने फॉर्म हो गए, दैट इज़ 4. तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया इसका, 4. इफ़ यू डिवाइड द क्यूब इनटू द पीसेस, सो व्हाट इज़ द स्केलिंग फैक्टर, दैट इज़ 4, 8, 12, राइट. सो कितना होगा स्केलिंग फैक्टर, 12 होगा. क्लियर? 12 नहीं 16 होगा, इस साइड में भी होगा, राइट. सो क्या होगा स्केलिंग फैक्टर, 16 होगा. क्लियर? So likewise, when we divide the line into two equal pieces, and by using any of these, if we want to recover line, then scaling factor will be 2. The plane into 4 pieces, so scaling factor is equals to 2. Plane into 4 pieces means this, square into 4 pieces. So what is the scaling factor, that is 2. ठीक है, बिकॉज 2 लाइन्स ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू स्केल दिस, राइट, और टू डिवाइड दिस. If we consider n as the number of equal number of pieces, then scaling factor is totally dependent on the n. अगर हम लोग n as a
इक्वल पीसेस कंसीडर कर रहे हैं, देन स्केलिंग फैक्टर इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस n, कि कितने नंबर ऑफ पीसेस में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, द स्केलिंग फैक्टर इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट n. ठीक है, तो स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू n in case of line, but it is not for the plane, it is different for all the shapes. Okay, now if we consider the fractal dimension for line, अगर हमें फ्रैक्टल डायमेंशन हमें लाइन के लिए निकालना है, सो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड. सो व्हाट इज़ द इनपुट फॉर दैट, दैट इज़ द नंबर ऑफ सेल सिमिलर पीसेस, मीन्स उस ऑब्जेक्ट को हमने कितने नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड किया गया, दैट नंबर ऑफ पीसेस, एंड सेकेंड इज़ द स्केलिंग फैक्टर. ओके, नाउ फ्रैक्टल डायमेंशन कैसे निकालेंगे, दैट इज़ फ्रैक्टल डायमेंशन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ नंबर ऑफ स्केलिंग सेल्फ सिमिलर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्केलिंग फैक्टर, मीन्स जितने नंबर ऑफ पीसेस में उसे डिवाइड किया गया डिवाइडेड बाय द स्केलिंग फैक्टर. क्लियर, जैसे स्केलिंग फैक्टर फॉर लाइन इज द 2. क्लियर, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाइन, राइट. सो नाउ द फ्रैक्टल डायमेंशन फॉर द प्लेन और क्यूब. ठीक है, प्लेन के लिए क्या होगा, यही डायमेंशन. सो डायमेंशन फॉर द प्लेन इज इक्वल्स टू सेम लॉग ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्केलिंग फैक्टर. नाउ इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ स्केलिंग फैक्टर रेज़ टू पावर 2. दिस इज द डायमेंशन वैल्यू और सेल्फ सिमिलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेन. क्लियर, कितने हो गए, स्केलिंग फैक्टर रेज़ टू पावर 2, एंड इन केस ऑफ क्यूब स्केलिंग फैक्टर रेज़ टू पावर कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है. लाइन में एक ही डायमेंशन होती है, प्लेन में 2 डायमेंशन से वी कैन सी दैट, एंड क्यूब में 3 डायमेंशन से वी कैन सी दैट, राइट. तो इसीलिए अगर हम लोग प्लेन लेते हैं तो स्केलिंग फैक्टर रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. क्या, दिस मेनी नंबर ऑफ objects, self similar object that we can get. Okay, so log of scaling factor raised to power 2 divided by log of scaling factor. Now how we can represent it, अगर मुझे ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 2 log of स्केलिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय log of स्केलिंग फैक्टर. सो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और वैल्यू विल बी 2. सो डायमेंशन फॉर प्लेन क्या हो जाएगा फिर 2. सेम डायमेंशन फॉर क्यूब क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़, दैट इज़ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्केलिंग फैक्टर. नाउ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट हाउ मेनी वी गेट, दैट इज स्केलिंग फैक्टर रेज़ टू पावर 3 इन टर्म्स ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, इसे फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 log ऑफ स्केलिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय log ऑफ स्केलिंग फैक्टर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू दैट वी विल गेट, 3. Clear, so to calculate the dimension of any other object, formula is same, that is log of number of similar object divided by log of scaling factor. So using this formula we can calculate dimension of any object, any self similar object. Okay.